In the name of Allah, the Merciful, the Magnificent. Assalamu alaikum viewers. You're watching English with Muhammad Rafi Chaudhary. Viewers, first year की English की book, unit number 5, Impact of Global Warming on Pakistan, paragraph number 4 के साथ. Viewers, now we have got the hard copy of this new book and unit number 5, its name has been changed. अब इसका नाम ग्लोबल वार्मिंग की बजाय इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन पाकिस्तान है. आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस पैराग्राफ नंबर 4, वर्ड मीनिंग्स, सिनोनिम्स, टेक्स्ट रीडिंग एंड उर्दू ट्रांसलेशन. First of all, word meanings and synonyms of paragraph number 4. Intensify, बढ़ाना, तकवीयत देना, strengthen, increase. Severity, शिद्दत, gravity, seriousness, acuteness. Cyclones, तूफान, storms, hurricanes, whirlwinds, tempests. Globally, बैनुल अक़वामी तौर पर, internationally, worldwide. कमिटमेंट, वादा, प्रॉमिस, प्लेज, वो, विटनेस, देखना, सी, ऑब्जर्व, बिहेल्ड. ड्रॉट्स, कहत, कमी, शॉर्टेज, लैग, फेमन. डिसरप्ट, परेशान करना, डिस्टर्ब, अपसेट, इंटरप्ट. प्रोलॉन्ग्ड, तवील, लॉन्ग. continued, lengthy. The viewers, after word meanings and synonyms, now text reading. टेक्स्ट रीडिंग के बाद व्यूअर्स इसका फ्रेज टू फ्रेज ट्रांसलेशन होगा. फिर इसके बाद इसका बामुहावरा उर्दू ट्रांसलेशन सुनाया भी जाएगा और आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखाया भी जाएगा. जी व्यूअर्स, टेक्स्ट रीडिंग ऑफ पैराग्राफ नंबर 4. Increased frequency of extreme weather events as the effects of global warming intensify. Pakistan is also witnessing an increase in the frequency and severity of extreme weather events such as floods, droughts, and cyclones. The geographical diversity of Pakistan, combined with the pressure of rapid urbanization and population growth, makes the country particularly susceptible to these climate-induced disasters. The changing climate has disrupted weather patterns globally, leading to more intense rainfall and prolonged dry periods in Pakistan. For instance, the 2010 floods affected over 20 million people and caused economic losses estimated at $10 billion. Resultantly, regions like Tharparkar have been experiencing more frequent droughts, which have exacerbated water shortages and food insecurity. The increased frequency of these extreme weather events is largely due to changes in atmospheric conditions caused by global warming. In response, Pakistan has developed the National Disaster Risk Management Framework as part of its commitment to SDG 13. This framework enhances disaster preparedness and response mechanism aiming to build resilience in vulnerable communities. The viewers, phrase to phrase Urdu translation of paragraph number 4. Increased frequency, बढ़ता हुआ तद्दद of extreme weather events, शदीद मौसमी वाक़यात का. As the effects of global warming intensify, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग के बैनुल-अक़वामी गर्मी के असरात बढ़ते हैं, पाकिस्तान इज़ आल्सो विटनेसिंग, पाकिस्तान भी देख रहा है एन इंक्रीज, एक इजाफा इन द फ्रीक्वेंसी, तद्दद में, एंड सेवरिटी और शिद्दत में ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, शदीद मौसमी वाक़यात की, सच एज फ्लड्स, जैसे कि सैलाब, ड्रॉट्स, कहत एंड साइक्लोन्स और तूफ़ान. The geographical diversity, जोग्राफियाई तनों of Pakistan, पाकिस्तान का, combined with the pressure of rapid urbanization,
तेजी से शहरकारी के दबाव के साथ मिलकर एंड पॉपुलेशन ग्रोथ और आबादी में इजाफे के साथ मिलकर मेक्स द कंट्री मुल्क को बनाता है पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर ससेप्टेबल हसास कमज़ोर टू दीज क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिज़ास्टर्स इस मौसम की वजह से आने वाले आफात के लिए द चेंजिंग क्लाइमेट बदलते हुए आब हवा ने हैज़ डिसरप्टेड ख़राब कर दिया है बिगाड़ दिया है वेदर पैटर्न्स ग्लोबली पूरी दुनिया में मौसमी नमूनों को लीडिंग टू मोर इंटेंस रेनफॉल जिसकी वजह से ज़्यादा शदीद बारिशें एंड prolonged ड्राई पीरियड्स और खुश्क साली के तवील अदवार इन पाकिस्तान में आए हैं। फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर द 2010 फ्लड्स 2010 के सैलाबों के दौरान अफेक्टेड ओवर 20 मिलियन पीपल। 2010 के सैलाबों ने 20 मिलियन 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुतासर किया एंड काज्ड इकोनॉमिक लॉसेस और मुआशी नुकसानात का मौजब बना एस्टिमेटेड एट $10 बिलियन जिनका तखमीना $10 बिलियन तक पहुंचा। रिजल्टेंटली नतीजा के तौर पर रीजन्स लाइक थरपारकर जैसे इलाके हैव बीन एक्सपीरियंसिंग देख रहे हैं गुजरते रहे हैं मोर फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स ज़्यादा बार मुसलसल बार आने वाले कहत को विच हैव एक्सरबेटेड जिसने बिगाड़ दिया है वाटर शॉर्टेजेस पानी की कमी को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है एंड फूड इनसिक्योरिटी और खुराक के गैर तहफ़्फ़ुज़ को भी बिगाड़ दिया है। द इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज एक्सट्रीम वेदर इन शदीद मौसमी वाक़यात के तअद्दुद में इजाफे ने इज़ लार्जली ड्यू टू चेंजेस इन शदीद मौसमी वाक़यात के तअद्दुद में इजाफा ज़्यादातर तब्दीलियों की वजह से है इन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस फ़ज़ाई हालात में कास्ट बाई ग्लोबल वार्मिंग जो बैनुल-अक़वामी गर्मी की वजह से आई हैं। इन रिस्पॉन्स जवाब में पाकिस्तान ने डेवलप किया है बनाया है द नेशनल डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एज पार्ट ऑफ इट्स कमिटमेंट अपने वादे के तौर पर टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 SDG 13 में अपने वादे को पूरा करते हुए अपने हिस्से के तौर पर पाकिस्तान ने नेशनल डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को कायम किया है। दिस फ्रेमवर्क इन्हेंसेस डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस ये फ्रेमवर्क ये तरीक़ाकार ये बढ़ाता है तबाही की बारे में तैयारी को एंड रिस्पॉन्स मैकेनिज़्म और उससे निमटने के तरीक़ाकार को एमिंग टू बिल्ड रेजिलियंस और इसका मकसद है रेजिलियंस पैदा करना मुज़ाहमत पैदा करना इन वल्नरेबल कम्युनिटीज़ कमज़ोर इलाकों में। जी व्यूअर्स अब इसका बामुहावरा ट्रांसलेशन शदीद मौसमी वाक़यात के तअद्दुद में इजाफा ये हमारी हेडिंग है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग के असरात शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं पाकिस्तान भी शदीद मौसमी वाक़यात जैसे सैलाब खुशक साली और तूफ़ानों की तद्दत और शिद्दत में इजाफा देख रहा है। पाकिस्तान का जगराफियाई तनोव तेज़ी से शहरकारी और आबादी में इजाफे के दबाव के साथ मिलकर मुल्क को ख़ास तौर पर इन मौसमियाती आफात के लिए हसास बनाता है। बदलती हुई आब हवा ने आलमी सतह पर मौसमी नमूनों को मुतासर किया है जो कि पाकिस्तान में ज़्यादा शदीद बारिशों और तवील खुश्की के अदवार का मौजब बना है। मिसाल के तौर पर 2010 के सैलाब ने 20 मिलियन से ज़्यादा अफराद को मुतासर किया और $10 बिलियन का मुआशी नुकसान पहुँचाया। नतीजतन थरपारकर जैसे इलाके ज़्यादा बार बार खुश्क साली का सामना कर रहे हैं जिसने पानी की किल्लत और ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ा दिया है। इन इंतहाई मौसमी वाक़यात की बढ़ती हुई तअद्दुद बड़ी हद तक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से माहौलियाती हालात में होने वाली तब्दीलियों की वजह से है। इसके जवाब में पाकिस्तान ने SDG 13 के लिए अपनी वाबस्तगी के हिस्से के तौर पर नेशनल डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क तैयार किया है। ये फ्रेमवर्क तबाही की तैयारी और रद्द-ए-अमल के तरीक़ाकार को बढ़ाता है जिसका मकसद कमज़ोर इलाकों कमज़ोर कम्युनिटीज़ में मुज़ाहमत पैदा करना है। Thanks for watching this video. Keep watching my videos, share my videos, subscribe my channel. Allah Hafiz.